Hello students, today we are going to start our chapter number 2, fractions. Okay, so firstly, introduction. We have learnt in our previous class that a and b are two whole numbers. A and b two are whole numbers. Then quantity a upon b. A upon b is called a fraction. Here A is numerator and B is denominator. Okay. The numerator A can be any whole numbers. यानी A जो हमारा numerator होता है वो whole number हो सकता है. However, the denominators B can take all values except 0 because the quantity A upon 0 अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो मीनिंगलेस हो जाएगा, हैंस अनडिफाइंड. सपोज दैट 7 upon 0, सो 7 सो अनडिफाइंड हो जाएगा ना. सम एग्जाम्पल एज ए फ्रैक्शन, सपोज दैट 1 upon 4, 3 upon 4, 7 upon 8, 11 upon 9. Okay. Now like fractions. Okay, if two fractions have same denominators, okay, the fractions having the same denominator are called like fraction. Suppose that here 2 upon 4 and 3 upon 4, denominator दोनों के क्या है, same, means 4 है दोनों के, so these are like fraction. Okay, fractions that do not have the same denominator are called unlike fraction. Suppose 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4, सबके denominator different है, तो these are unlike fraction. Okay, there are two types of fractions, like fraction and unlike fraction. Okay. Now proper fraction. The fractions that represent a part of whole A are called proper fraction. The numerator in such fractions is always less than the denominators. Okay, यानी proper fraction में क्या होगा, जो denominator है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा और numerator क्या होगा, छोटा होगा. The numerator is such fraction is always less than. Okay, just suppose 2 upon 4, 3 upon 4, तो denominator क्या है, बड़ा है और numerator क्या है, छोटा है. So this fraction is proper fraction. Okay. The value of such fraction is always less than 1. Okay, इनकी वैल्यू हमेशा less than 1 होगी. Suppose that if 2 upon 4 यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, half means improper fraction. The fraction that represent more than a whole are called improper fraction. Means अगर numerator, बेटा जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसमें न्यूमरेटर हमेशा लेस देन होगा और डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, बट इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर लेस होगा. ओके, 14 upon 5, ऊपर वाला हमेशा बड़ा होगा जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होगा. ओके, सपोज 2 upon 1. ओके, यानी their value are always more than 1 and these value always less than 1. Okay, now mixed fraction. Improper fraction represent quantity that, अगर देखो बेटा हम improper fraction को जैसे suppose that combination में लिखा जाता है whole number and a proper fraction. Such numbers are called mixed fraction. For example देखो
सपोज दैट 3/2। ये कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर, यानी न्यूमरेटर क्या है? ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर लेस। इफ़ वी डिवाइड 3 में हम 2 का डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ओके, -1। सो 1 से बड़ा है, लेकिन और कितना है? आगे भी है ना। सो 1 जो हमारा रिमाइंडर आता है उसको ऊपर लिखना है। देन हमने किसका डिवाइड किया था? डिविज़र। सो 1.5, ओके। सो दिस इज अवर mixed fraction, understood? Suppose that 5/3, 5 में 3 का डिवाइड दिया, 3 1 जा 3, then -2, so 1 2/3, that is mixed fraction, okay, understood? Then our next equivalent fractions. A given fraction and the fractions obtained by multiplying or dividing the numerator and denominator of the given fraction by the same number are called equivalent fraction. Suppose that a and b our fraction, okay, non-zero number n. हमें फाइंड करना है a और b का क्या? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो हम इसको भी n से मल्टीप्लाई, इसको भी n से मल्टीप्लाई, या फिर इसको भी n से डिवाइड और इसको भी n से डिवाइड, ओके। देखो बेटा, इसके हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट 2/4 है, इसके हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? 2/4, इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2, इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2, सो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, ओके। या फिर आप इसको डिवाइड करो, डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 एंड 4 को 2 से डिवाइड किया 2 2 ज़ा 4, और नेक्स्ट 2/4 को 3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 से, सो 3 2 जा 6 एंड 4 3 जा 12, सो 6/12, अंडरस्टूड? आप जिसको ए एंड बी को जिससे मल्टीप्लाई ऊपर वाले को कर रहे हो, डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। इज दैट क्लियर? Exercise 2.1, first question. Find, first question, 2 equivalent fraction of 4/5. So our first equivalent fraction 4/5, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से। ये ज़रूरी नहीं है मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, आप किसी और से भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ 2 पे किया है। 4/4 मल्टीप्लाई बाई 2, देन 5 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10। देन नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसको भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके। सो आप मान लो सपोज दैट आप 4 को 4 से कर रहे हो तो 5 को भी 4 से करना है, ओके। 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 50, ओके। थर्ड, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48। बेटा देखो यहाँ पे 4/5 को हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी से, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई। बट नेक्स्ट क्वेश्चन में ये डिवाइड हो सकते हैं। देखो यहाँ भी इवन नंबर, यहाँ भी इवन नंबर, सो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। सो फर्स्टली वे डिवाइड, न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड किया एंड डिनोमिनेटर को भी 2 से। सो 2 1 जा 2, 1 बचा एंड 6 16, 2 8 जा 60, देन 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। सो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 18/24, second 36/48। नाउ वी डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 2 ज़ा, देखो 3 1 ज़ा 3, ओके, एंड 3
तो 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 4 से, 4 9 जा 36 and 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. Here is beta 12 upon 16. Okay, clear? Now our question number 2. अरेंज करना है 3/4, 5/6, 7/9 इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हमें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है उसको। सो फर्स्टली हम देखेंगे अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो इजीली हो जाएगा, बट हेयर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, या 4 है या 6 है या 9 है। सो फर्स्टली हम एलसीएम लेते हैं। ओके, एलसीएम फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। सो 4 6 एंड 9 का हमने लिया तो 36 है। एलसीएम आपको लेना आता है, देखो 4 6 एंड 9 का एलसीएम क्या होगा, हमने 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 9 नहीं आता 2 की टेबल में। हेयर इज 2 अगेन, 1 3 9, हेयर इज 3 1 3 3 जा 9, अगेन 3 1 1 1. Now we multiply 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36. So our LCM of 4 6 and 9 36. So 36, ठीक है बेटा। Now हमें देखो 36 LCM आ गया। 4 को हमें डिवाइड करना है 36 से, ठीक है। 4 9 जा, देखो हमें जो एलसीएम है इसको डिनोमिनेटर से क्या करना है, डिवाइड। 4 9 जा 36, सो 9 आया। देन हमें न्यूमरेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो 9 3 जा 27। सेम हम यहाँ करेंगे 6 की टेबल में, 6 6 जा 36, तो 6 आया हमारा, और 6 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 6 5 जा 30, देन 9 4 जा 36, सो 7 4 जा 28। नाउ हमें इन तीनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। सो 27 अपॉन 36, 30 अपॉन 36, 28 अपॉन 36। अब देखो, अब हमें 36 तीनों के सेम आ गए डिनोमिनेटर। सो सबसे बिगेस्ट डिजिट कौन सी है, 30 है ना, सबसे बिगेस्ट 30, उसके बाद 28, उस 27। सो 27 कौन सी थी, फर्स्ट, यानी 3/4। फिर 5/6 हमारी सबसे बड़ी है, देन 27 अपॉन 9 आवर सेकेंड डिजिट। तो दिस इज आवर असेंडिंग ऑर्डर। ओके, एक्सरसाइज 2.1, first question. Find first question 2 equivalent fraction of 4/5. So our first equivalent fraction 4/5, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से। ये ज़रूरी नहीं है मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, आप किसी और से भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ 2 पे किया है। 4 multiply by 2, then 5 multiply by 2. So 4 2 is 8, 5 2 is 10. Then next equivalent fraction, इसको भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, सो आप मान लो सपोज दैट आप 4 को 4 से कर रहे हो तो 5 को भी 4 से करना है। ओके, 4 3 is 12, 5 3 is 50. ओके, थर्ड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36 अपॉन 48। बेटा देखो यहाँ पे 4/5 को हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी से, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई। बट नेक्स्ट क्वेश्चन में ये डिवाइड हो सकते हैं, देखो यहाँ भी इवन नंबर, यहाँ भी इवन नंबर, सो 2 से डिवाइड हो सकता है। सो
फर्स्टली वे डिवाइड न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड किया एंड डिनोमिनेटर को भी 2 से. सो 2 1 जा 2, 1 बचा एंड 6 16, 2 8 जा 60. Then 2 2 is 4, 2 4 is 8. So first equivalent fraction 18 by 24. Second 36 upon 48. Now we divide by 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6, and 3 2s are देखो 3 1s are 3. Okay, and 3 1s are 3 and 3 6 are 18. ठीक है. ओके, नेक्स्ट 4 से 4 9s are 36 and 4 1s are 4, 4 2s are 8. Here is beta 12 upon 16. Okay, clear. Now our question number 2. अरेंज करना है 3 by 4, 5 by 6, 7 by 9 in ascending order of magnitude. हमें ascending order में सेट करना है उसको. सो फर्स्टली हम देखेंगे अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो इजीली हो जाएगा, बट हेयर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, या 4 है या 6 है या 9 है. सो फर्स्टली हम एलसीएम लेते हैं. ओके, एलसीएम फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स. ठीक है. सो 4 6 एंड 9 का हमने लिया तो 36 है. एलसीएम आपको लेना आता है. देखो 4 6 एंड 9 का एलसीएम क्या होगा. हमने 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 9 नहीं आता 2 की टेबल में. हेयर इज 2 अगेन, 1 3 9. Here is 3 1, 3 3 is 9. Again 3 1 1 1. Now we multiply. 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 3 is 36. So our LCM of 4 6 and 9 36. So 36. ठीक है बेटा. Now हमने देखो 36 एलसीएम आ गया. 4 को हमें डिवाइड करना है 36 से. ठीक है. 4 9 देखो हमें जो एलसीएम है इसको डिनोमिनेटर से क्या करना है, डिवाइड. 4 9 जा 36. सो 9 आया. देन हमें न्यूमरेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई. सो 9 3 जा 27. सेम हम यहाँ करेंगे 6 की टेबल में. 6 6 जा 36. तो 6 आया हमारा, और 6 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई. 6 5 जा 30. देन 9 4 जा 36. सो 7 4 जा 28. नाउ हमें इन तीनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम है. सो 27 अपॉन 36, 30 अपॉन 36, 28 अपॉन 36. अब देखो, अब हमें 36 तीनों के सेम आ गए डिनोमिनेटर. सो सबसे बिगेस्ट डिजिट कौन सी है, 30 है ना. सबसे बिगेस्ट 30, उसके बाद 28, उस 27. सो 27 कौन सी थी, फर्स्ट, यानी 3/4. फिर 5/6 हमारी सबसे बड़ी है. देन 27 अपॉन 9 आवर सेकेंड डिजिट. तो दिस इज अवर असेंडिंग ऑर्डर. ओके.